Greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अजोड़ नाम में हम आप सबों का अभिवादन करते हैं। I thank God for this lovely opportunity to share from the Word of God. मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ इस सुनहरे अवसर के लिए कि मैं आपके मध्य में प्रभु के वचनों में से बांट पा रहा हूँ। I would also like to thank our Dauntless Pulpit family for your constant prayer and support. और मैं उसके साथ साथ डॉन्टलेस पुलपिट के पूरे परिवार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमेशा हमें निरंतर प्रार्थनाओं में जारी रखा है। I hope that you have been blessed through our sermons and hope that you will continue to be blessed. और मेरी आशा है, मेरी प्रार्थना है कि आप सब शायद हमारे संदेशों से आशीषित हुए हैं और हमारी प्रार्थना है कि आप आगे भी होते रहेंगे आशीषित। May the Lord lead us in his fruitful ways. परमेश्वर हमें उनके फलवंत मार्गों में अगुवाई देते रहे। My dear brothers and sisters, the events that have been passed on or the things that have been going around across the globe reminds us that how fragile our human beings are. मेरे प्यारे मित्रों, जो हमारे इर्द गिर्द जो भी घटनाएं हो रही है भूतकाल में जो हुई और उसके साथ साथ पूरे विश्व भर में आज के समय की जो परिस्थिति है वो हमें याद दिलाती है कि मानव कितना नाशवान है। I don't have to talk anything about the pandemic and the coronavirus. मुझे यहाँ पर कोरोना वायरस या फिर इस वैश्विक महामारी के बारे में बात ही नहीं करनी है। But there is a very thin line between sickness and health. परंतु मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि बीमारी और तंदुरुस्ती, तंदुरुस्ती और नादुरुस्ती के बीच में एक बहुत ही पतली सी ऐसी लाइन है। We can feel really very great today, but come down with the virus tomorrow. ऐसा हो सकता है कि आज हमें बहुत ही अच्छा लगे परंतु कल शायद हम संक्रमित भी हो जाए And that is when we fall sick. और तब हम बीमार गिरते हैं And that is when we need a doctor. और तब हमें एक चिकित्सक की जरूरत होती है। In Matthew chapter 9, verse 12, Jesus says that it is not the healthy who needs a doctor, but the sick. और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 12वें पद में यीशु मसीह कहते हैं कि वैद्य भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। Keeping these words in our mind, let us look to the Lord in prayer. और इन शब्दों को मद्देनजर रखते हुए आइए हम प्रार्थना करें। Let's pray. Gracious and loving Heavenly Father, we want to thank you for this wonderful day and this wonderful time. Even as we have gathered over here to hear from your word, Lord, you speak to us. Lord, let your Holy Spirit be upon us and let the fellowship of the Holy Spirit guide us and lead us so that we may understand and interpret the scriptures according to your truth. In Jesus' most precious name I pray. Amen. In Matthew chapter 9, verses 9 to 13, we see that there is a calling that is going on. मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 9 से लेके 12-13 पद के अंदर हम ये जानते हैं, हम ये देख पाते हैं कि वहां पर एक बुलाहट के बारे में लिखा गया है। And we very much know the incident that is going on in this passage. और हमें ये बहुत ही भली भांति मालूम है कि यहाँ पर कौन सी घटना आकार ले रही है। In verse 9, as Jesus went on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax collector's booth. Follow me, he told him, and Matthew got up and followed him. और 9वें पद में लिखा है कि वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को चुंगी की चौकी पर बैठा देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठ के उसके पीछे हो लिया। And this is all about the calling of a man named Matthew. और यहाँ पर स्पष्ट रीति से ये जो शास्त्र पाठ है ये मत्ती नामक एक चुंगी लेने वाले की बुलाहट के बारे में है। During those times in the world history, the Roman government were ruling the people. और उस समय के काल के अंदर जो संदर्भ था वो ये था कि रूमी साम्राज्य उस समय के उधर के लोगों के ऊपर राज कर रहा था।
The Roman government were innovative but ruthless at the same time. ये जो रूमी साम्राज्य था वो नई नई चीजें करने में बहुत मानता था, परंतु उसके साथ साथ वो निर्दयी भी था। And one of the ruthlessness of the Roman government was its heavy taxation. और एक मुख्य जो रोमी साम्राज्य की निर्दयता थी वो ये थी कि वो उनके अंतर्गत आने वाले लोगों पर बहुत ही भारी ऐसा कर वो लगाते थे, चुंगी लेते थे उनसे ज्यादा। And how does this taxation work? और वहां पर ये जो टैक्स लेने की जो बात थी वो किस प्रकार से कार्यरत थी? Well, there were big and elite people in the society who would buy a particular area for a fixed price as a tax collection areas. और वहां पर स्पष्ट ऐसी बात थी कि कुछ जो बहुत ही अमीर और बहुत ही अच्छे धनवान जो लोग थे वो किसी जगह को या फिर बहुत ही अच्छी ऐसी कोई जगह को खरीद लेंगे एक स्पष्ट ऐसे भाव के ऊपर। And in this particular area, they will collect a fixed amount of tax. और फिर उस जिस जगह को उन्होंने खरीदा है उसके ऊपर वे खुद व्यक्तिगत कर या फिर टैक्स जो है वो लेंगे। And there were two types of tax, that was the toll tax and was the property tax. और उस समय में दो प्रकार के टैक्स या फिर चुंगी ली जाती थी। एक था टोल टैक्स, मतलब कि किसी फाटक को पार करने का टैक्स, और दूसरा था प्रॉपर्टी टैक्स, मतलब आपके पास अगर कोई संपत्ति हो तो उस संपत्ति के ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ता था। But these elite people or the senators would not come down to collect the tax. परंतु ये जो उच्च कक्षा के लोग थे, ये जो धनवान लोग थे, जिन लोगों के पास संपत्ति थी और जो जगह खरीदते थे, वो लोग स्वयं आकर नीचे आकर वहां पर जो चुंगी थी वो नहीं लेते थे। Rather, they would hire local citizens of the country or the region to collect this money. परंतु उसके विपरीत वो इस प्रकार से करते थे कि उसी जगह से या फिर उसी जगह का कोई व्यक्ति को वो चुनेंगे और उनको वो नौकरी पर रखेंगे कि वो वहां पर उनके लिए चुंगी इकट्ठा करे। So there was a fixed amount of money that was allotted for taxation, and beyond that, whatever collection was done was considered to be profit or pocketed by the tax collectors. तो इसका मतलब ये था, एक स्पष्ट ऐसी कीमत थी जो लोगों से लेनी पड़ती थी और फिर वो धनवान व्यक्ति को देनी पड़ती थी, परंतु उसके विपरीत उसके उपरांत जो भी आवक हो, जो भी पैसे मिले, वो सीधे उस चुंगी लेने वाले की जेब में जाते थे। First of all, taxation itself is a burdensome. सबसे पहली बात तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो चुंगी भरने की या फिर टैक्स भरने की जो बात है वो बहुत ही बोझ बोझ स्वरूप में हमें लगती है। And money collected beyond this requirement is an exploitation. और जरूरत से ज्यादा जब पैसे हमसे ले लिए जाए तो ये तो शायद एक प्रकार का शोषण है। And who were doing this? This were done by the tax collectors. और ये शोषण कौन कर रहा था? ये तो वो चुंगी लेने वाले, टैक्स लेने वाले लोग कर रहे थे। And in this passage, we see that Matthew is the tax collector. और यहाँ पर इस शास्त्र पाठ में हम देखते हैं कि वहां पर चुंगी लेने वाले का जो नाम था वो मत्ती था। And moreover, Matthew is a Jew who is working against his own people for the Roman government. और उसके उपरांत हम जो एक और बात जो हमें लिखनी चाहिए वो ये है कि मत्ती जो है वो एक यहूदी था जो उस समय के रोमी साम्राज्य के लिए यहूदियों के विरुद्ध में कार्य कर रहा था। So basically, Matthew was an outcast. तो मतलब ये था कि स्पष्ट रीति से देख सकते हैं कि मत्ती जो था उस समय एक प्रकार का तड़ीपार व्यक्ति था। Politically, he was outcast because he was working for the Roman government. राजनीतिक तौर से ये तड़ीपार था क्योंकि वो रोमी साम्राज्य के लिए कार्य कर रहा था। Religiously, he was an outcast because the tax collectors were unclean and they were banned from all the synagogue services. और धार्मिक वृत्ति से भी वो एक प्रकार का तड़ीपार व्यक्ति था क्योंकि धार्मिक क्रियाकांडों के लिए ये चुंगी लेने वाला जो व्यक्ति था वो बहुत ही अशुद्ध था और सभास्थान के कोई भी भाग में चुंगी लेने वाला प्रवेश नहीं कर सकता था।
And he was also a social outcast because he was a traitor. He was working for the enemy to exploit his own race. और सामाजिक रीति से भी वो तड़ीपार इसलिए था क्योंकि वो एक प्रकार का देशद्रोही था। इसका मतलब है कि दुश्मन के लिए वो काम अपने लोगों के विरुद्ध में कर रहा था। Basically, it is like when a Jew entered a custom service, he was regarded as an outcast from the society. जो स्पष्ट बात है वो ये है कि जब भी कोई भी यहूदी व्यक्ति ऐसी प्रकार की काम में या फिर नौकरी में जब प्रवेश करता था तो उसे समाज के तौर पे उसे एक तड़ीपार व्यक्ति माना जाता था। He was disqualified as a judge or a witness in a court session. और उसके साथ साथ उसकी जो हक थे कि वो किसी भी चीज का अगर न्याय कर सके या फिर किसी भी चीज के लिए वो गवाही दे सके, वो हक भी उससे ले लिए जाते थे। He was excommunicated from the synagogue. और उसे सभा स्थान से बाहर निकाल दिया जाता था। And in the eyes of the community, he has earned disgrace to the extent of his family. और लोगों की नजरों में दरअसल में जो यहूदी पूरा जो परिवार था उनके लिए वो अपमान का कारण था। Basically, this shows the nature of Matthew, the tax collector over here. और स्पष्ट रीति से यहाँ पर हम मत्ती जो व्यक्ति के स्वरूप में था उसके स्वभाव के बारे में हम समझ सकते हैं। The kind of sinner or the evil being that he was is being clearly explained over here. और स्पष्ट रीति से हमें यहाँ पे समझाया गया है किस प्रकार का वो पापी था और किस प्रकार से एक दुष्ट मनुष्य था। To this sinner, Jesus goes and says, "Follow me." और इस पापी व्यक्ति को यीशु मसीह जाके कहते हैं कि मेरे पीछे हो ले। Now, this is the first time that Matthew is hearing such a call. और ये शायद कोई पहली बार ही है कि मत्ती जो है इस प्रकार की बुलाहट को सुन रहा है। Before this, Jesus has called previous disciples. और इसके पहले भी यीशु मसीह ने अलग-अलग पहले के चेलों को बुलाहट दी थी। Maybe Matthew might have also heard the Sermon on the Mount. शायद ये संभव है कि मत्ती ने शायद वो पहाड़ पर के प्रवचन को भी सुना हो। But this is the first personal call that he gets. परंतु ये सबसे पहला व्यक्तिगत बुलाहट है जो उसको प्राप्त होती है। And what is this call about? परंतु ये बुलाहट किसके बारे में है? A call to completely change his life. एक ऐसी बुलाहट जो संपूर्ण रीति से उसके जीवन को परिवर्तित कर देगी। A call to leave his life of sin and corruption and repent. एक ऐसी बुलाहट जो उसके पापी जीवन को और भ्रष्टाचार को छोड़कर उसे पछतावे की तरफ, पश्चाताप की तरफ लेके जाएगी। A call to live a life of wealthy and prosperity and become poor. और एक ऐसा जीवन, एक ऐसी बुलाहट जिसके अंदर वो धनी और समृद्ध जीवन को छोड़कर एक गरीब बन जाए। Moreover, there was no way that Matthew could find another job. स्पष्ट रीति से ये बात बहुत ही स्पष्ट वचनों में हम समझ सकते हैं कि मत्ती के पास ऐसा और दूसरा कोई व्यवसाय नहीं था जिसमें वो प्रवेश कर सकता था। Probably when we consider the other disciples who were the fishermen, they had an option of buying a boat and getting into fishing later on in their lives. अगर दूसरे चेलों के बारे में हम देखें तो जो मछुआरे थे ज्यादातर लोग, वो शायद फिर से नाव को खरीद कर या फिर से सारी सामग्री खरीद कर उनके पुराने व्यवसाय में वापस जा सकते थे, पर मत्ती के लिए ऐसा नहीं था। He couldn't become a tax collector again. वो फिर से पुनः एक बार वो चुंगी लेने वाला नहीं बन सकता था। And this was a very key moment for him too. और ये शायद उसके खुद के जीवन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी घड़ी थी। And what was the response of Matthew at this particular stage? और इस जगह पर इस पूरे संदर्भ के अंदर मत्ती का प्रतिसाद क्या था? Matthew experienced the grace of God and it made him renounce his old life. और मत्ती ने परमेश्वर की अनुग्रह का अनुभव अपने जीवन में किया और उससे उसने अपने पुराने जीवन को त्याग दिया। Matthew left his lifestyle and career behind. मत्ती ने उसका जीवनचर्या या फिर उसका जो
पुरानी जो जीवन की रीति थी उसको उसने पीछे छोड़ दिया। Matthew left the corruption and greed behind him. और मत्ती ने वो भ्रष्टाचार और वो लालसा अपने जीवन में पीछे छोड़ दी। And Luke Gospel says that he left everything. और लूका रचित सुसमाचार में लिखा है कि उसने अपना सब कुछ त्याग दिया। Matt Chandler, a man of God, says that without a heart of transformed, without a heart transformed by the grace of God, we just continue to manage external and internal darkness. मैट चैंडलर जो एक बहुत ही प्रचलित प्रभु का सेवक है, उसने इस प्रकार कहा है कि जब तक हृदय जो है मानवीय हृदय वो परमेश्वर की कृपा से परिवर्तित नहीं होता है, तब तक हम केवल आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के अंधकारों को हम अपने जीवन में आगे लेके चलते हैं। This indicates towards a complete transformation through the grace of God. इसका मतलब है कि हमें भी हमारे जीवनों में परमेश्वर के अनुग्रह से एक संपूर्ण परिवर्तन की जरूरत है। Now, did Matthew actually transform? अब जो प्रश्न है वो ये है कि क्या मत्ती सचमुच में परिवर्तित हुआ था? Yes, he did. हाँ, ऐसा हुआ है। And that is what we read in the next verse, that now, after leaving everything, this new Matthew is about to celebrate his transformation. और ये सचमुच में ऐसा हुआ था क्योंकि 10वें पद में हम ये लिखा हुआ पढ़ते हैं कि और जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत सारे चुंगी लेने वाले और पापी आकर यीशु को और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। इसका मतलब है कि मत्ती जो है अब इस परिवर्तित जीवन को मना रहा था। And Matthew calls for a celebration, a dinner party. और यहाँ पर मत्ती जो है वो एक प्रकार के उत्सव की बुलाहट दे रहा है, लोगों को बुला रहा है अपने घर पे मनाने के लिए। Now, in the party, look at the guest list. Now, the guest list is filled with many tax collectors and sinners. और अब ये जो पार्टी मत्ती ने रखी है उसके अंदर जो जिन लोगों को निमंत्रण दिया गया है वो मेहमान सारे के सारे चुंगी लेने वाले थे। They were definitely the near and dear ones of old Matthew. और शायद वो स्पष्ट रीति से मत्ती के करीबी लोग हैं, जो मत्ती के नजदीक रहने वाले लोग हैं, उसे जो चाहते हैं ऐसे लोग हैं। Now, definitely, these weren't the people who were the front benchers in the synagogue. और ये स्पष्ट बात है कि सभा स्थान में जो जाके आगे आगे बैठते हैं वो शायद इसमें शामिल नहीं होंगे। The verse clearly says that they were sinners. और पद में स्पष्ट लिखा है कि वहां पे पापी थे। And along with the sinners, we see that Jesus and his disciple also are in this party, in this celebration, to have dinner with them. और यहाँ पर उन चेलों के साथ साथ हम यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ते हैं कि यीशु मसीह और उसके चेले ये लोग भी इन पापियों के साथ यहाँ पर खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। Now, when there is a party, there are also some party crashers. स्पष्ट बात ये भी है कि जब भी ऐसी कोई अच्छी पार्टी होती है तो पार्टी को बिगाड़ने वाले लोग भी वहीं पर होते हैं। And here they are the Pharisees. और यहाँ पर ये भी उपस्थित थे, फरोशी यहाँ पर उपस्थित थे। The verse 11 says that when the Pharisees saw this, they asked the disciples, "Why does your teacher eat with the tax collectors and sinners?" और पद में स्पष्ट 11वें पद में लिखा है कि यह सब देखकर फरोसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता है। So the Pharisees were present at the dinner, but were not the part of a dinner. इसका मतलब है कि जो फरोशी जो लोग थे वो लोग भी उस खाने की मेज पर उपस्थित थे, परंतु वो खाने के लिए वहां पर नहीं थे। It was one of the ancient world tradition that anyone could come along and stand along the walls or look through the window and participate in the conversation without being an official guest at the dinner. और ये तो शायद पुरातन काल की उस समय के विश्व की ये प्रणालिका थी कि कोई भी व्यक्ति आकर दीवार के पास या फिर उस खिड़की के पास आकर किसी भी घर में खड़ा रह सकता था और जो चल रही बातचीत है उसमें भी वो शामिल हो सकता था, भले ही उसे निमंत्रित ना किया गया हो।
And apparently, the Pharisees, who were a group of committed Jews who particularly follow the tradition affirmed by the oral traditions of the Jews. और यहाँ पर जो फरोशी जो लोग थे वो तो बहुत ही समर्पित ऐसे यहूदी लोग थे जो एक प्रणाली का जो है यहूदियों के लिए पुरातन काल में जो स्थापन की गई थी उसी प्रणाली का को चुस्तपन से वो लोग पालन करते थे. And they ask a question to the disciples over here. और यहाँ पर ये फरोशी लोग उन यीशु मसीह के चेलों को प्रश्न करते हैं. Why does your teacher eat with the tax collectors and sinners? और वो कहते हैं कि तुम्हारा गुरु ये चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ भोजन क्यों कर रहा है. Now, when the Pharisee says, why does your teacher, that implies that these Pharisees too had a teacher. और यहाँ पर जब ये फरोशी लोग ऐसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा गुरु क्यों, इसका मतलब ये है कि फरोशियों का भी उनका खुद का गुरु होगा. And the teachers of the Pharisees were strict to follow the Jewish tradition. और यहाँ पर ये जो फरोशियों के जो गुरु हैं वो भी शायद इस यहूदी प्रणाली को पालन करने के लिए बहुत ही चुस्त होंगे. And therefore, they look at Jesus and say, hey, Jesus, the teacher of law, does not seem to be understanding the law. और उसके विपरीत यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग यीशु मसीह को देखकर ये लोग यीशु मसीह से कहते होंगे कि यीशु मसीह जो नियम का सिखाने वाला है शायद ऐसा है कि उसको खुद को भी इतने नियम समझ में नहीं आते हैं. Now the response to the question asked to the disciple is given by Jesus himself. अभी यहाँ पर चेलों को जो प्रश्न पूछा गया था उसका प्रतिसाद अभी यीशु मसीह खुद देते हैं. In verse 12 it says, on hearing this, Jesus said, it is not the healthy who needs a doctor, but the sick. और यह सुनकर 12वें पद में लिखा है, और यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगे को नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है. When was the last time that you visited a doctor to just have a talk? ऐसा कब आखिरी बार हुआ था जब ऐसे ही डॉक्टर के साथ आप बातचीत करने के लिए और थोड़ी चर्चा विचारणा करने के लिए आप उसको मिलने के लिए चले गए? Have you ever taken an appointment to the doctor to just have a chit chat? क्या आपने कभी किसी डॉक्टर का समय केवल उनसे बातचीत करने के लिए ऐसे लिया है? No, we don't do that. नहीं, हम ऐसा कभी नहीं करते हैं. We take an appointment to a doctor when we are sick and when we need a help of him. हम किसी भी डॉक्टर का समय तभी लेते हैं जब हम नादुरुस्त हो, जब हम बीमार हो और जब हम उनकी मदद की जरूरत हो. And this also states that the doctor is always surrounded by unhealthy people. तो इसका मतलब स्पष्ट रीति से ये भी है कि डॉक्टर या वैद्य एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा नादुरुस्त लोगों से घिरा हुआ रहता है. The people who need healing, the people who need redemption from their sickness are surrounded by the doctor. और ऐसे लोग जिनको बीमारी से चंगाई चाहिए या फिर ऐसे लोग जिन लोगों को अपने शरीर में जो नादुरुस्ती वो दूर करनी है वो डॉक्टर के पास आते हैं. In this similar way, the savior of this world is surrounded by sinners. और यहाँ पर उसी तरह से ये जो दुनिया का उद्धार करता है वो भी पापियों से घिरा हुआ है. And that is what Jesus Christ is saying over here, that it is not the healthy who needs a doctor, but the sick. और उसी बात को मद्देनजर रखते हुए यीशु मसीह भी यहाँ पर कहते हैं कि भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं है परंतु पापियों को है, बीमारों को है. The sick person needs healing, goes to the doctor. और जो बीमार व्यक्ति है और जिसे चंगाई चाहिए वो वैद्य के पास जाता है. The sinner who needs redemption comes to the savior. एक ऐसा पापी जिसको छुटकारा चाहिए वो उद्धारकर्ता के पास जाता है. Now, does that mean that the Pharisees were the healthy people? तो इसका मतलब क्या अब ये है कि वो जो फरोशी लोग थे वो तंदुरुस्त लोग थे? Was Jesus pointing out towards the sinners and the tax collectors that they were unhealthy and they only require me? और क्या यीशु मसीह ऐसा कहना चाह रहे थे कि ये जो पापी और जो चुंगी लेने वाले हैं वो ही नादुरुस्त है और केवल उनको मेरी जरूरत है?
And Jesus continues, but go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice, for I have not come to call the righteous, but sinners. और यीशु मसीह फिर आगे कहते हैं 13वें पद में, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। Jesus rebukes the Pharisees and their lack of care or concern for the sinners. और यहाँ पर यीशु मसीह उन फरोशियों को डांटते हैं और उसके साथ साथ उनकी जो लापरवाही है उन पापियों की चिंता रखने के लिए उनके लिए उनको डांटते हैं। Therefore, Jesus quotes from Hosea chapter 6, verse 6, stating that, go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice. और इसीलिए यीशु मसीह होशिया 6 और 6 को फिर से यहाँ पर पुनरावर्तन करते हैं और वो कहते हैं कि जाओ और इसका अर्थ तुम सीख लो कि मुझे दया पसंद है ना ही यज्ञ। Jesus is rebuking the Pharisees for rejecting the outcast instead of showing mercy to them. अभी यहाँ पर यीशु मसीह उन फरोशियों को इसलिए डांट रहे हैं क्योंकि उन्होंने इन तड़ीपार लोगों को दया दिखाने की जगह उन्हें धकेल दिया, उनको नकार दिया। The Pharisees are more interested in washing their hands and being clean. ये जो फरोशी जो लोग थे उन्हें अपने हाथ धोकर बस उन्हें साफ रखने में ज्यादा रस था than welcoming the outcast and the sinners. परंतु उसके विपरीत जो उन्हें करना था कि उन तड़ीपार लोगों को और उन पापियों को अवकार देना था वो वे नहीं कर रहे थे। Ironically, Jesus is implying that Pharisees are the one who are sick. और बहुत ही अगर व्यंग्यता से देखे तो यीशु मसीह यहाँ पर एक तरह से ऐसा कहना चाह रहे हैं कि फरोशी वे लोग थे जो बीमार थे। There is only one difference, that the sinners and the tax collectors know that they are sick. और केवल एक ही अंतर है इन दोनों में कि ये फरोशियों को और इन पापियों को और इन चुंगी लेने वालों को पता था कि वे बीमार हैं। But the Pharisees think that they were fine. परंतु इन फरोशियों को लगता था कि वो एकदम ठीक है। Many a times we are also like these Pharisees. We deceive ourselves from our sickness. और काफी बार हम भी ऐसे फरोशियों के समान बन जाते हैं। हम अपने आप को अपनी बीमारी से धोखा देते हैं। हम कहते हैं कि हम तंदुरुस्त है भले ही बीमार हो। We do not recognize our sickness or the need for healing. हम हमारी जो बीमारी है उसे ढूंढ नहीं पाते हैं या फिर हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं और हमें जो चंगाई की जरूरत है उस जरूरत को भी हम नहीं समझ पाते हैं। Once there was a pastor who was ministering among the musicians, singers, bakers, and some laborers. एक बार एक ऐसा पादरी था जो कुछ संगीतकारों के मध्य में, गायकों के मध्य में, जो रोटी बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, ऐसे लोगों के मध्य में और मजदूरों के मध्य में सेवकाई कर रहा था। And in his lane there were also prostitutes, and he was also ministering to them. और उसी सूची के अंदर उसके साथ साथ वो कुछ वैश्याओं को भी प्रभु के सेवकाई के बारे में सिखा रहा था। God was using him very much in his ministry. और परमेश्वर उस सेवक का बहुतायत से अपनी सेवकाई में उपयोग कर रहे थे। But what he says is like sharing the love of God to these musicians, singers, bakers, and laborers is very difficult. और वहां पर वो जो कह रहा था वो ये था कि इन गायकों को या फिर संगीतकारों को या फिर ये जो मजदूरों को प्रभु का प्रेम बताना या फिर सिखाना या फिर समझाना बहुत ही मुश्किल था। But on the other hand, when we go and minister to these prostitutes, it's really very easy to share the love of God, and they accept the love of God. परंतु उसके विपरीत वो पास्टर साहब ये कहते हैं कि यही परमेश्वर के प्रेम की बात हम जब किसी वैश्या को जाके कहते हैं तो बहुत ही स्वीकृतता से वो स्वीकार लेते हैं और उसे समझ पाते हैं। The simple thing that the pastor was trying to mention over there is like the prostitutes knew that they were sick and they were in their sinful nature.
और जो स्पष्ट बात जो पादरी साहब दिखाना चाह रहे थे वो ये थे कि उन वेश्याओं को पता था कि वे बीमार है और उन्हें एक चंगाई करने वाले चंगाई की जरूरत है। But on the other hand, when you look at the other group of people, they think that they are not sick. और उसके विपरीत हम जब देखते जो दूसरा जुट था लोगों का, वैसे सोचते थे कि वो बीमार नहीं है। Well, we can say that we don't harm with actions or we don't harm with our thoughtful things, but we do hurt people with our words. हम ऐसा भी कह सकते हैं शायद कि हम हमारे कार्यों के द्वारा लोगों को चोट नहीं पहुंचाते हैं, परंतु काफी बार हमारे शब्दों के द्वारा और हमारे विचारों के द्वारा हम लोगों को चोट पहुंचाते हैं। We just judge people because they sin differently. हम उनका हम उनका न्याय इसलिए कर बैठते हैं क्योंकि वो अलग रीति से पाप करते हैं हमसे। And thereby we deceive ourselves about the need for the Savior to save us. और इसी तरह से हम अपने आप को धोखे में डालते हैं, छल में डालते हैं और हम कहते हैं कि हमें किसी उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं, हमें कोई चंगाई की जरूरत नहीं है। My dear brothers and sisters, we can definitely identify ourselves among these two major characters. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन दोनों चरित्रों के बारे में हम जब पढ़ते हैं, पात्रों के बारे में हम जब पढ़ते हैं, तब इन दोनों में से कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी वहां पर देख पाते हैं। Either our life is like a Matthew, a tax collector, a sinner, or our life is like a Pharisee. ऐसा भी हो सकता है शायद हमारा जीवन इस मत्ती चुंगी लेने वाले पापी के समान हो, या फिर हमारा जीवन फरोशी के समान भी हो। If our life is like a Matthew, the sinner, we need to repent and turn back to God and ask for His grace, which will transform us. और यदि हमारा जो जीवन है, एक मिनट, हाँ, यदि हमारा जीवन मत्ती के समान, उस पापी के समान है, तो हमें पश्चाताप की जरूरत है और फिर से परमेश्वर के साथ उनकी तरफ वापस मुड़ने की जरूरत है, ताकि हमें हमारे जीवनों में चंगाई प्राप्ति हो। Or if we identify ourselves with the Pharisees, we need to ask God's grace to come and reveal us our sicknesses. और यदि हम फरोशी के समान हो, तो हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है कि उनकी कृपा हम पर आए और हम हमारी जो बीमारी है उसे समझ पाए। We need to ask God to make us poor in spirit so that we can humble ourselves in front of our Savior. हमें परमेश्वर से मांगने की जरूरत है कि परमेश्वर हमें आत्मा में दीन बनाए, ताकि हम अपने आप को नम्र कर सके हमारे उद्धारकर्ता के सामने। There isn't a small sinner or a big sinner. ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि कोई बड़ा पापी है और कोई छोटा पापी है। There is only a category of people who are sinners or sick who needs a Savior. केवल जो विभाजन है वो केवल इतना है कि कुछ लोग पापी है और कुछ लोग बीमार है, जिनको उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। And there is only one Savior or one physician who can heal us and who can give us a healthy life. और केवल एक उद्धारकर्ता है और एक ऐसा वेद है जो हमें चंगाई दे सकता है, जो हमें छुटकारा दे सकता है। Let us humble ourselves in front of this Savior so that we can get the spiritual healing that we need. तो आइए हम अपने आप को इस उद्धारकर्ता के सन्मुख नम्र करें, ताकि जो आत्मिक चंगाई की जरूरत हमें है वो हमें मिले। May God bless us all. परमेश्वर हम सबों को आशीष करे। Let us pray. Joel, pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हमारे राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता, आपके नाम को धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि हम फिर से एक बार आपके सेवक और आपकी सेविका होकर, आपके संतान होकर परमेश्वर पिता हम आपके वचनों में से सुन पाए हैं। कुछ धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे आपके सेवक परमेश्वर पिता क्लीटस के लिए, जिन्होंने प्रभु जी अद्भुत रीति से आपके वचन का मर्म, आपके वचन का मतलब हमें समझाया। परमेश्वर पिता आप हमें अनुग्रह दीजिए, आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखे कि हम समझ पाए परमेश्वर पिता कि हम किस तरह के लोग हैं। क्या हम समझ पा रहे हैं या फिर क्या हमें इस बात की अनुभूति है कि हम बीमार हैं, या फिर क्या आज भी हम अपने आप को धोखे में रखकर अपने आप को तंदुरुस्त बताते हैं, परंतु हम वैसे नहीं है। परमेश्वर पिता पारक शक्ति का आत्मा हमें दीजिए, ताकि परमेश्वर पिता हम अपने आप की हमारी अवस्था को हम समझ पाए,
ताकि परमेश्वर पिता हम समझकर उसका उपाय जो उद्धारकर्ता यीशु मसीह में हमें मिलता है, उस उपाय को, उस वैक्सीन को परमेश्वर पिता हम हमारे जीवन में ले पाए। अपनी कृपा हम प्रत्येक पर बनाए रखे परमेश्वर पिता। हम वचन को न केवल सुनने वाले, परंतु परमेश्वर पिता वचन को सुनकर उसका पालन करने वाले आपके संतान होने पाए, ऐसी कृपा हम चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। Amen.